Good morning, all. Today, dear students, as you know, that we have finished our first chapter of company law. Now, we are switching to the chapter 3, that is company secretary, and one lecture on this regarding the meaning of secretary and types of secretary, then definition of company secretary we have already discussed, and now I am switching to the next topic of chapter 3, that is qualification of company secretary. So, dear students, according to company's appointment and qualification of secretaries rule 1988, it says that a company may appoint as its secretary only such person who has the following qualification. This means companies अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी रूल्स 1988 के अंडर एक कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को एज अ सेक्रेटरी तभी अपॉइंट कर सकती है अगर उसके पास ये फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस हों, जिसमें फर्स्ट है, in case of company with paid up share capital of not less than 5 crore, the person so appointed must be a member of Institute of Company Secretaries of India, New Delhi. This means कि अगर एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम नहीं है, उस केस में जो भी पर्सन को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, ये ज़रूरी है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का मेंबर होना चाहिए. सेकेंड इज़, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल लेस देन 5 करोड़, और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम है, तो जिस भी पर्सन को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा उसके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग्स क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, जिसमें कि फ़र्स्ट है कि वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, या वो मेंबर होना चाहिए लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स का. सेकंड, उसके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी. थर्ड, उस ही शुड बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Fourth, he should be a member of Institute of Cost or Works Accountants. He must have postgraduate degree or diploma in management science. Next, postgraduate degree in commerce or corporate secretaryship from any university in India. Postgraduate diploma in corporate laws and management for Indian Law Institute. Postgraduate diploma in company secretaryship from the Institute of Commercial Practices, New Delhi. And next is membership of Secretaries and Managers Association, Kolkata. And last is postgraduate diploma in company law and secretarial practice from University of Udaipur. So this means that in case a company is there whose paid up share capital is less than 5 crores, so the person who will be appointed as a secretary must have any one of these qualifications mentioned and explained above. Now next is, in case if a company's paid up share capital is more than 5 crores, then the company must within 1 year of increase in share capital appoint a whole time secretary who is a member of Institute of Company Secretaries of India, New Delhi. This means कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो और अगर उसने अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ किया है, तो विद इन 1 ईयर उसको एक होल टाइम सेक्रेटरी भी अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये पर्सन जो एज अ होल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, he must be a member of Institute of Company Secretaries of India, New Delhi. Next is the qualification of a person holding the office of a whole-time secretary immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be the prescribed qualification. तो अगर जो पर्सन की क्वालिफिकेशन है जिसने कि एज अ होल टाइम सेक्रेटरी इज़ वर्किंग
इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, तो उसमें ये मान के हम चलेंगे कि उसके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस हैं टू बिकम द होल टाइम सेक्रेटरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द अबव क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द प्रिस्क्राइब्ड qualifications of any limited company which has incorporated with the aim of development of art, science, religion, culture and which prohibits the payment of dividend. This means कि ये जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं ये इन किसी भी लिमिटेड कंपनी में जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है किस पर्पस से, आर्ट, साइंस, रिलीजन, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, या जो डिविडेंड्स पे नहीं करती, तो ये क्वालिफ़िकेशंस उस केस में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशंस नहीं मानी जाएंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, अब क्या हुआ है कि एक न्यू एक्ट ऑपरेशन में आया है with respect to the appointment of company secretaries from 10th December 1988, और इस एक्ट को हम कहते हैं Companies Appointment and Qualification of Secretary Rules, and the Institute of Company Secretaries were established as a legal association under this act. इस एक्ट के अंदर 39 सेक्शंस हैं और जो भी प्रैक्टिसिंग मेंबर्स होंगे इस इंस्टीट्यूट के, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, उन्हें सेक्रेटरी नाम दिया जाएगा। द पर्सन हु पोजेस द इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बिकम्स अ मेंबर, और इस केस में जो मेंबर्स होंगे वो दो तरह के होंगे, एक होगा एसोसिएट और दूसरा होगा फेलोज। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एक कंपनी हु इज़ हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 crores or more but less than 5 crores, then it may appoint any individual who possess the qualification of membership of Institute of Company Secretary of India as a whole-time secretary to perform the duty of a secretary under Companies Act 2013. This means that कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, मतलब कि मिनिमम 2 करोड़ है बट मैक्सिमम 5 करोड़ है, तो वो किसी भी पर्सन को एज एन सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है जिसके पास क्वालिफिकेशन है ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अंडर फॉर्म हुआ है। तो इस पर्सन को एज अ होल टाइम सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है एक सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और जो कोई भी ऐसा पर्सन है हुज नेम इज़ एंटर्ड इन द इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर इज़ डीम्ड टू बी एन एसोसिएट, मतलब जिस किसी भी इंडिविजुअल का नाम इंस्टीट्यूट रजिस्टर में एंटर हो गया है उसको हम एसोसिएट लेकर चलेंगे और वो अपने नाम के आगे ASC लिखेगा। Any associate who has had a working experience of 3 years is deemed to be a fellow, और कोई भी ऐसा एसोसिएट जिसको 3 years का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसको फेलो कहा जाएगा और वो अपने नाम के आगे FSC लगाएगा। यानी कि एक ऐसा एसोसिएट जिसका नाम इंडियन रजिस्टर में एंटर हो गया ऐसे पर्सन का नाम, तो ही विल बी नोन एज ASC, एंड अगर उसको 3 years का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ही विल बी नोन एज फेलो and can add FSC after his name. तो नए एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंडर ये जो अभी हम 5 डिसक्वालिफिकेशंस हैं, ये these would be considered as the disqualifications of secretary under the provision of new act. That means अगर कोई भी person below 21 years of age का है तो he or she cannot be a सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। इसी तरह अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, इफ़ अ पर्सन इज़ इंसॉल्वेंट, या उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है ऑफ एनी एक्ट ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, या ही और शी इज़ कन्विक्टेड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो ये न्यू एक्ट के प्रोविजंस के अंडर ये कुछ डिसक्वालिफिकेशंस हैं जिसके अंडर अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग एनी ऑफ द these disqualification is not eligible to be a secretary of a company. I hope this topic is clear to you all. Now switching to the next topic,
दैट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी. अब देखो, जो भी कंपनी का सेक्रेटरी है उसको कोई ड्यूटीज़, उसको मल्टीफेरियस मतलब कि मल्टी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, और इन ड्यूटीज़ को वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तभी परफॉर्म कर पाएगा इफ़ अ सेक्रेटरी हैज़ सम क्वालिटीज़. तो दीज आर द फ्यू qualities which are important for a secretary. First is impressive personality. This means that the first attribute of an efficient secretary is that beside his qualification he must have an impressive personality. And impressive personality क्या करेगी? It would help him to win the confidence. उसको डायरेक्टर्स का कॉपरेशन मिलेगा, मेंबर्स का मिलेगा, एम्प्लॉयज़ का मिलेगा of the company as well as the outsiders. Because तो along with the impressive personality he has to be intelligent, persuasive, जो अपनी बातों को दूसरों को समझा सके, हार्ड वर्किंग, फार साइटेडनेस, फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके, एंड अ डिसीजन मेकर. सेकेंड क्वालिटी साउंड जनरल नॉलेज. अब अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेक्रेटरी मस्ट बी well informed about the prevailing economic, social, political conditions which are prevailing in the country. क्योंकि वो एक राइट डिसीजन ले पाएगा एट द राइट टाइम. तो इसके लिए ज़रूरी है कि ही इज़ वेल वर्स्ड विद द प्रिवेलिंग सिनेरियो. थर्ड इज़ कमांड ओवर इंग्लिश. एक इफ़ेक्टिव सेक्रेटरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस रीजन में वो सेक्रेटरी है वहाँ की लैंग्वेज के ऊपर उसे कमांड होनी चाहिए. मतलब कि जिस जगह पर कंपनी लोकेटेड है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज उस सेक्रेटरी को आनी चाहिए. दिस इज़ ड्यू क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क होता है और सेक्रेटरी को एक्सप्रेस करना होता है अपने आप को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में हर कॉरस्पॉन्डेंस लेटर, कन्वर्सेशन, जीमेल्स एंड ऑल दैट. और एक सेक्रेटरी को नोटिसेस भी इशू करने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती है, वर्क शेड्यूल्स बनाने होते हैं. तो इसके लिए उसको उस रीजनल लैंग्वेज के ऊपर एक कमांड होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ लॉज. अब जो सेक्रेटरी है he must be well versed with the complicated legal requirements and he must adhere to the provisions of the law. तो इसका मतलब उसे कुछ लॉ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली उन लॉज की विच हैव अ स्ट्रॉन्ग बेयरिंग ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है, मोनेटरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट लॉज एंड दोज रिलेटेड टू इंश्योरेंस और एजेंसी. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वालिटी इज़ नॉलेज ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब ये जो सेक्रेटरी है कंपनी का तो ही मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. क्योंकि एंड इवन अमेंडमेंट्स आर बीइंग मेड इन दिस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उन अमेंडमेंट्स के बारे में भी सेक्रेटरी को फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो he must be conversant with the latest amendments in the company's act. Next is knowledge of bookkeeping and accounting. Beside knowledge of law of the land, the company secretary must also have a knowledge of bookkeeping and accounting. ये इसलिए ज़रूरी है because he has to collect data for company's books of accounts and then to present it to the board of directors or in the company's general meeting. अगर इसको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं होगी then he has to be dependent upon the others and they may lack somewhere. Next is knowledge of organization and management. तो जो सेक्रेटरी है वो एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का. तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट में क्या होना पड़ेगा? एक्सपर्ट होना पड़ेगा. क्योंकि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की और मैनेजमेंट की कंपनी की, दैट रिलाई विद द कंपनी सेक्रेटरी. तो it is rightly said that directors are the brains of the company and the secretaries are ears, eyes and hands of the company. Next is knowledge about meeting. A most important function secretary का क्या है? To organize company meetings, work schedules बनाना, चेयरमैन को असिस्ट कराना, मीटिंग्स के मिनट्स को प्रिपेयर करना. So it is very important that he has knowledge about the meetings and how to organize and handle the company's meeting. So next is the last is he must have
knowledge of foreign language. The person, the secretary, must have knowledge of the foreign languages. Look, if a company is having branches overseas, अगर उनके बिजनेस फॉरेन कंट्रीज़ में हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. और सेक्रेटरी के लिए भी प्लस पॉइंट होगा अगर उसको वो फॉरेन लैंग्वेज आती है, because then he can handle the correspondences to and fro from these countries. Last is knowledge of trade. एक सेक्रेटरी के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कंपनी ट्रेड के बारे में, बिकॉज अगर उसको ट्रेड के बारे में नॉलेज होगी देन ओनली ही कैन हैंडल द कंपनीज प्रॉब्लम्स इन अ प्रॉपर वे. एंड जो भी प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम कंपनी के बिजनेस में अराइज होती हैं तो वो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा और अच्छे से उन्हें रिमूव कर पाएगा. तो आई होप this all is clear to you. So today we did the qualifications of a company secretary, where we talked about the qualification needed if a company, in case of a company with paid up capital not less than 5 crores, in case of a company having paid up capital more than 5 crores, and then we did some important features, the provisions of the new act, in which certain disqualifications as secretary are deemed, like being less than 21 of age, being of unsound mind, being an insolvent, convicted by court, convicted of professional misconduct, are considered to be the disqualifications. Then we did about the qualities of a secretary, like he must have an impressive personality which would help him to win the confidence and the cooperation of the insiders and outsiders. He must have proper knowledge about the